Hasteo agar mantok nai rang thongni kaisa snam kosna miti sanani nahar mungo hasteni agar painai te phalnai rokdote kraksar hora agotala de Polo Tower Hotel khlaijaka kaisa nangkukmani seminar panda video conference ni bisingtei korongkha ha kotoni conference and industry consumer affairs te food and public distribution bedek ni montri Pijus Goyal manjaka ha kotoni montri Okra Biplop Kumar Dev montri Mebar Kumar Jomatia te montri NC Debarma Akosong Hasteo agur bofam kaimani bisingtei bania khlaimungni lamano pharnani naharmungo hasteni agur painaite phalnai rokna teyei kraksal horo agurtolani Polo Tower Hotel khlaijaka kaisa nangkukmani seminar pandao video conference ni bisingtei korongkha hakotorni commerce and industry consumer affairs te food and public distribution bedekni montri Piyush Goyal Manjaka hakotorni montri Okra Biplop Kumar Dev montri Mebar Kumar Jomatia te montri NC Debarma Akosong Kebang Mario Hasteo agor bofang kaimani bisingtei rangpusa ajimungni beremno kwar khlaieti sanani naharmungo samukhlai tongo khonai sakha hasteni tiprasate abedekni montri Mebar Kumar Jomatia I am very grateful today, especially our strong dynamic Chief Minister Biplop Kumar Dev ji. Through his leadership, we can achieve these kind of activities. First of all, I want to congratulate him, to our Chief Minister and our Minister, Forest Ministers and Chief Secretary and officers came from Delhi and all the dignitaries, especially सबसे আমাদের আগর চাষিরা সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এন্ড শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট্ট রাজ্য, তবু আমাদের সৌভাগ্য কখনো ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের 70% আমরা বলতে পারি 70% জমি আমাদের ফরেস্ট আন্ডারে আছে, ফরেস্ট কভার। এটাই আমাদের সবচেয়ে সৌভাগ্য। কারণ আমরা জানেন আমি 3.5 বছর আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ছিলাম, ফরেস্ট ছিলাম। 2019 যখন আমি ফরেস্ট মিনিস্টার ছিলাম, আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমি বোম্বেতে গেলাম। মুম্বাইতে আমি প্রায় 5-6 দিন ছিলাম। ঠিক সে সময় আমি আজমাল গ্রুপ ওনার সঙ্গে আমরা ইন্টারাকশন করলাম। আজমাল গ্রুপ আসাম থেকে, হুজাই থেকে ওনারা ছিল, আমাকে অনেক এনকারেজমেন্ট দিলাম এবং আগর পড়ার জন্য। এরপর আমি হোজাইতে গেলাম, আসাম হোজাইতে। এখন আমি দেখতে পাইলাম আগর ইজ দ্য ট্রিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবচেয়ে এদের আমাদের চাষির মধ্যে যদি আগরকে আমরা যদি ভালোভাবে যদি আমরা গ্রো করতে পারে, রাবার থেকে বিভিন্ন টিম্বার থেকে অনেক লাভ বেশি। And again, Tripura, everybody know, even our command minister Unir Bollam, our beautiful city Agartala came into being in the name of Agartala. যখন আমি ছোট ছিলাম, when I was young, I have seen lot of trees in Agartala. There are lot of trees in Agartala, Agar trees. Because the name was also came into being, Agartala. But unfortunately, for long time, we were waiting
আমাদের স্বপ্ন ছিল যে আগরকে আমরা আগরত্রীকে আমরা যদি সরকারিভাবে লিগালাইজ করতে পারে আমাদের হাজার হাজার আগর চাষিরা উপকার হবে। আমাদের স্বপ্ন ছিল, দুর্ভাগ্যবশত বিগত সরকার কোনো পলিসি নিল না, কোনো চিন্তা ছিল না। 50-60 বছর হয়েছে আমাদের আগর করবার। আমি জানি লট অফ ডিফিকাল্টিস। আমি কদমতলা গেছি, কলেজে গেছি, খোয়াই গেছি, আমি দেখলাম লুকিয়ে চাষি করত। They're afraid to the government, the police, the forest department. এইভাবে অনেক বছর আমাদের আগর চাষিরা। Therefore, our intention, আমাদের নতুন সরকার 2008 পরে আমরা চেষ্টা করেছি with the leadership of Chief Minister how to bring out the policy of Agar. We are trying our best, and এই স্বপ্ন আমরা আজকে বাস্তবই হয়েছে। The dream become reality. And the first time in the history of Tripura, even I was told in the history of India, that our government is bring out the Agar policy. আমাদের চাষি ভাইরা, now what is our gap? আমি সব চাষিকে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কথা বলবো, কারণ আমরা জানি আমরা পলিসি করতে পারি, কিন্তু পলিসি আমাদের প্রোডাকশন যদি না বাড়ায়, চাষিরা যদি এনকারেজ যদি না হয়, এই আমাদের ড্রিম, আমাদের পলিসি বাস্তবায়ন হবে না। यांते खक्सा फाइसिंग पांडाव कक साना थांगै हास्तेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव साखा त्रिपुरा हास्तेनो आगर मानथकमानि रांथंनि हुप हाइखे स्नामिति साननानि बागै चेंजाखा मिशन फाथार हास्तेव आगर बफां एक्सपोर्ट खालामनानि लगी लगी हास्तेवनो आगर बफां बाय स्नामै मानमानि दाल बिदाल मानि खनै स्नामानि बिसिंतै केबनो बिखा साननानि नांगला हास्ते हनै। आज त्रिपुरा के लोगों को बिजनेस कैसे मिलता है, एक राष्ट्रप्रधान से बात होती है, और पहले त्रिपुरा को किभाबे आंदोलन में डुबाया जा सकता है, बर्बाद किया जाता, उसके लिए सोचा जाता था। आज सोच में अंतर आया है। राज्य वही है, भौगोलिक भूमि उतना ही है, ऑफिसर वही है। कुमारा लोग पहले भी नौकरी करता था, आज भी नौकरी करता है। यह जो भी फॉरेस्ट के अधिकारी पहले भी थे, आज भी है। यहां जो लोग बैठे हुए हैं पहले भी अगर पौधे लगाते थे, आज भी लगा रहा है। सिर्फ पॉलिसी चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया। इजी टू कोना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके इनके ऊपर और भी पाबंदी लगाते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? सहजतर बिजनेस पद्धति लागू करो, इजी टू करो, 10 पेज में नहीं 1 पेज में भरो, कर दो। किसने बोला? पाबंदी सब इंग्रेज ने व्यवस्था किया है, इंग्रेज का दिया हुआ है। रेल बजट 2 बजे पढ़ेंगे और ऐसे बजट 11 बजे पढ़ेंगे। किसने बोला? कौन से संविधान में लिखा हुआ? इंग्रेज ने भूख लगा होगा, दोपहर में आके रेल बजट पढ़ा, बोले 2 बजे पहुंचे, चल रहे। मोदी जी ने आके बोले क्या है भाई, दोनों एक साथ ही पढ़ लो, क्या दिक्कत है? हो गया। इतना तो चेंज नहीं कर रहा था, इसे कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। अरे इंग्रेज ने तो सब पाबंदी लगाया था भारत को रोकने के लिए। क्योंकि उनको राज करना है, हमको रोकना है, इसीलिए बनाया था। तो उसको 1947 में देश शादी हुई, आके मोदी जी को बहुत सारी आईपीसी की धारा डिलीट करना पड़ा, नहीं तो पुलिस वाले किसी को भी उठा के थाने में भर देता है, निकल नहीं सकते, बेल नहीं। आज 7 साल के ऊपर सजा हो तभी आपको अटका सकता है, नहीं तो नहीं।
ये भी मोदी जी ने किया। 3 तलाक के ऊपर हाथ नहीं दे रहा था कोई। मोदी जी ने किसी तरफ नहीं देखा, बोले हर महिला को समान अधिकार देना है, और उन्होंने उसमें हाथ लगाया और 3 तलाक से त्रिपुरा के और देश के सभी बहनों को मुक्ति दिलाई। जिसके बेटी का तलाक होता है ना, उस बाप को जाकर पूछो कैसा लगता है। मैं एक बार दिल्ली से फ्लाइट से गुवाहाटी जा रहा था। एक हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए थे, बड़े बिजनेसमैन हैं आसाम के, बात हो रहा था। उस समय 3 तलाक की बिल ये सब बातचीत हो रहा था, तो हमको बोल रहा था मेरे पास सब कुछ है, मेरी एक ही बेटी है, उसने अपने मन से शादी किया था, उसको तलाक दे दिया, मेरा पैसा धन दौलत कहाँ जाएगी, क्या करूं, मैं दुखी आदमी, ये जो बिल आ रहा ना हो जाना चाहिए, मेरी बेटी जैसा और किसी को दुख ना हो। एक देश में 2 आइन क्यों रह गए? एक देश में 2 आइन नहीं होना चाहिए। सभी तो महिला है, सभी तो बहनें हैं, सभी तो माँ है, उसको भी मोदी जी को ही करना। अरे माँ है तो हम लोग कोई मान ले, जहां मां पैदा कर सकते नहीं कर सकते विप्लव देव, किसी मां ही विप्लव देव पैदा कर सकता है। आज उस मानसिकता के आगे लेके माननीय प्रधानमंत्री जी काम करता है। राबर मिशन के बारे में बोल रहा था आदरणीय कॉमर्स मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर के बाद पीयूष गोयल जी लगे, तब जाके आत्मा से 1100 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट में रबर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी आई है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और त्रिपुरा में 5 साल में 30,000 हेक्टेयर में रबर पौधे नए लगे जाएंगे। रबर मिशन का शुरुआत कर दी हमने और 5 साल में 624 करोड़ के आसपास इकोनॉमी तैयार होगी अलग से ही। रबर में आज आप लोगों को खुशी होगी, बहुत लोग समझ रहा था रबर में काम नहीं किया, बहुत काम किया। 50 स्मोक हाउस था, आज 200 स्मोक हाउस ऑन प्रोसेस, 300 प्रोसेसिंग यूनिट नया लगाया। एक लॉबी में चलता था रबर शीट बेचने का, वो लॉबी तोड़ दिया। त्रिपुरा में 2017-18 तक पर किलो नॉर्मल जे शीट 80-90-100 रुपए के ऊपर बेच नहीं पाया कोई किसान, और 800 डीलर थी, आज 1600 डीलर है त्रिपुरा में, लाइसेंस दे देते हैं। डीलर है, काम करना चाहे तो लो लाइसेंस। आपको जान के खुशी होगी, हो सकता है आप जानते हो त्रिपुरा में 2 लाख लोग रबर के साथ जुड़े हुए हैं। 1.5 लाख तो रबर ग्रोअर है। आपको पता है अभी त्रिपुरा में रबर पर किलो कितना में बिकता है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को सेकंड टाइम जब मिला था सीएम के नाते, तब मैंने बोला था रबर में मैं इनको दुगना इनकम कराना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला होगा, तुम धीरे धीरे करो ना, तुम एक दिन में क्यों सब करना चाहते हो, पेशेंस रखो। हम बोले ठीक है करेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता दे गए, वो रास्ता से चलते चलते आज हमारे कोई भी रबर ग्रोअर जब शीट बेचता है, नॉर्मल जो शीट है जो 100 रुपए में बिकता था, आज 160 रुपये में बेचता है बंधु, 160 रुपया में, 160 रुपीज। हिसाब करिए कितना पैसा कमा रहे हैं। और आरएसएस 3, 4, 5 इसका तो नाम ही नहीं सुना था, वो भी होती है त्रिपुरा में आज। आप सोचिए 2 लाख लोगों का रोजगार, जहां 100 रुपया पर किलो था 160 रुपया हुआ, 170 रुपया हुआ। त्रिपुरा का इकोनॉमी चेंज हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में। और अगर ये तो हाफ बन जाएगा, अभी ठीक है हमको बोल रहे थे एक्सपोर्ट करेंगे, चारकोल भेजेंगे फ्लाइट से, हम चारकोल भेजने के चक्कर में नहीं है, बनाने मैं सोच रहा हूं यही परफ्यूम इंडस्ट्री डेवलप कर दिया जाए और यहां से ही पैकिंग हो, यहां से दुनिया के बाजार में जाए। हम क्यों दे दे, पहले शुरुआत दे के शुरू करूंगा, किंतु बाद में
यहाँ ही प्रोसेसिंग यूनिट करेंगे, अगरबत्ती यही बनाएंगे, सब मटेरियल मेरे पास है, मैं क्यों भीख मांगने के लिए दूसरे के पास जाऊं। एक समय त्रिपुरा में 29,000 मीट्रिक टन जो अगर स्टिक बेंगलोर में जाती थी, अगर फैक्ट्री में, जो अगरबत्ती की फैक्ट्री में, बाद में कमते कमते 1400 में चला गया। क्यों? वो जो पीयूष जी बोल रहे थे, क्योंकि बाहर से आने लगे, धीरे धीरे त्रिपुरा का लोग कंपटीशन में टिके नहीं। किंतु मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने देश का इकोनॉमी का नुकसान हुआ, उनके ड्यूटी कम मिली उनको, किंतु उन्होंने 25% ड्यूटी लगा दिया। ड्यूटी लगते ही बाहर से आना बंद हुआ, तो त्रिपुरा में जो 29,000 मीट्रिक टन था वो बढ़ के अभी दोबारा उस रास्ते में जा रहा है। अभी 4 से 5,000 मीट्रिक टन के आसपास पहुंच जा रही है। और हमारे यहाँ अगरबत्ती आज फैक्ट्री है, प्रोडक्शन होती है, और ये अगर तो अगरबत्तियों का हब बना सकते, त्रिपुरा में हब बना सकते। स्पेशल इकोनॉमिक जोन साबरों में बनाया हुआ है, जीएसटी फ्री है, 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद त्रिपुरा सरकार इंडस्ट्री दफ्तर से आपको वहां सब्सिडी देती है, बिजली में आधा पैसा लेंगे, लगाइए फैक्ट्री। यही सब कुछ है, यहां से सब कुछ मिलेगा। जहां कुछ है वहां से शुरुआत नहीं करना चाहिए, बिजनेस का थ्योरी नहीं कहता। जहां नहीं है वहां से शुरुआत करिए, पूरे दुनिया आपके साथ हो जाता है। यही प्रमाणित है। आप याद करो, जब ये जो हज फोन है, उसके बाद एयरटेल है, BSNL है, इनका जो कार्ड आया है, कनेक्शन देना है, तो कहां दे रहा था? पूरे भारत के उत्तर, दक्षिण, मध्य भारत में। ऐसे में भी नॉर्थ ईस्ट में तब प्रीपेड अलाउ नहीं थी। प्रीपेड जब अलाउ हुई तब भी बड़े कंपनी में यहां नहीं आ रहा है। बोले यहां कहां से बजा है, यहां कौन जाएगा? मुझे आज भी ख्याल है, एयरसेल करके एक कंपनी आया, जिनको लगा यहां बिजनेस नहीं है, एयरटेल नहीं आ रहा था, हच नहीं आ रहा था, किंतु एयरसेल आया नॉर्थ ईस्ट में प्रीपेड कार्ड लेके। बाद में देखा हूं पूरे नॉर्थ ईस्ट से इतना पैसा कमाया, बाद में इन लोगों को खरीदने लगा शेयर। क्योंकि जहां नहीं है वहां से शुरू करें। मटेरियल तो है, अगर तो है, रबर तो है, टीक तो है। बर्मी से जो टीक है, त्रिपुरा का टीक सेम है, कोई अंतर नहीं है। राजखर आउगुलिनी सिम कृष्णानुज निकोपथुम चीनी खरा। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।